एकदम सिलेबस के हिसाब से था। सिलेबस के हिसाब से। बस नेक्स्ट क्वेश्चन थे एक एक लाइन के। Most questions were based on summative assessment. Few questions were from the power plant generation and all these. मतलब हम तो एश्योर है कि क्वालिफाई हो जाएगा, हाँ, ठीक है। अब लेट्स सी कि अब देखिए बीपीएससी जो फाइनल एग्जाम है वो कैसा जाता है। क्वेश्चंस जो है वो इजी थे, कुछ क्वेश्चंस जो है मॉडरेट लेवल पे थे। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और बिहार स्टेट का जो आज लास्ट एग्जाम था, जो 2 तारीख को जो ओपन हुई थी फॉर्म, उसके लिए कैंडिडेट जैसे ही बाहर आएंगे उनका अपडेट लेंगे कि आज का पेपर कैसा रहा था, कोई लेवल में चेंजेस तो नहीं आया है। हमारे इस वक्त के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कैसा गया पेपर? मतलब मॉडरेट था और अच्छा था, मतलब कि जितना हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा और टफ हो सकता था, बट पेपर वॉज गुड। एक्चुअली काफ़ी लेट भी हो गया था, तो हो सकता है कि लास्ट में थोड़ा सा बढ़े लेवल। हाँ, तो मतलब ठीक था, पेपर वॉज गुड और उम्मीद है, मतलब हम तो एश्योर है कि क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सी कि अब देखिए बीपीएससी जो फाइनल एग्जाम है वो कैसा जाता है। मेन तो ये तो जस्ट क्वालिफाइंग ही नीचे था। सब्जेक्ट कौन सा था? जूलॉजी और मेरा साइंस था। पेपर 1 या और क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहे पेपर 1 के? अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो बेसिकली अगर हम देखें ना, तो क्वेश्चन जो बेसिकली ज़्यादातर हमारे इसके उससे आए थे, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा लगे हैं। हाँ, जूलॉजी तो वो बायो का ही पार्ट हो जाएगा ना। बायो का ही पार्ट। आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बता रहे हैं थोड़ा कि ज़्यादातर रहा था। हाँ, ज़्यादातर रहा। जूलॉजी का और जो बायोलॉजी का सेगमेंट था वो ईजी था। सीडीपी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा? सीडीपी ठीक था, अच्छा था। हाँ, अच्छा था, मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन आए थे टीचिंग मेथड्स पे। इट वाज एनालिटिकल और फैक्चुअल? एनालिटिकल या। एंड लास्ट वो जो जनरल क्वेश्चंस थे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड वो इजी थे, मतलब कि वो तो आप लाइक पढ़ें 8 तक तो वो कर लेंगे आप अच्छे से। हाँ। हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी आउट ऑफ 150? 150 लाइक 110 या। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। आपका कैसा रहा? It was extremely good. I did not get so much time to prepare, but still the questions were very good. And when compared recently, BPSC exam was conducted. That question according to primary was very tough, but this according to secondary level was amazing. And also this the level of question was good. I mean, if you have studied basic math, if you know, because you must know about your particular subject. I mean, I'm from science background, and the question was good. I am expecting to clear it easily, and the level, the GK or the others, other than your specific subject, whatever questions were asked, that was also, everybody can do. Nothing, very, we cannot say the questions were very tough. It was good. And according to, yes, I would say it was the questions were justified, right? And जस्टिफाइड की बिकॉज समय कम मिला था इसलिए? No, I had good enough, I had enough time to do, because to be true, I rested because my health is not so good today, so I rested also, around 40 to 50 minutes. I finished it earlier, so we had enough time. If if a student had studied, they would clear it easily. That is CDP कैसा रहा? CDP was also not so theory based. Whatever, yeah, it was art of teaching level. That was all based on how you are going to take your class. Most questions were based on summative assessment. Few questions were from the power plant generation and all these, but still the level of question was very good. सब्जेक्ट मैथ था या साइंस था? Science. Yes, I'm from साइंस का डिस्ट्रीब्यूशन? Science, because the question was of 100 questions was from my stream, and the questions were good. Like earlier, I have given examination of CTET also. There, the questions were basically based on vitamins and all. This questions were good. Like few were based on power plant generation, resource. All the topics were properly covered. That means कि NCERT टेक्स्ट बुक जरूरी है? Yeah, NCERT is zaruri. Plant based question, for example, which kind of root absorbs absorbs oxygen or carbon dioxide from outside the soil. These kind of questions were asked, and it was good. Yes. कोई दिक्कत हुआ लास्ट वाला सेक्शन में, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड? No, maths part was also easy. For example, I got to find the answer for this simple interest. That is very easy. Just the answer were given. Few questions were based on velocity, force. The SI units were asked. That's it. लास्ट क्वेश्चन, इस साल का तो बिहार स्टेट हो गया, आज लास्ट पेपर है,
नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे उन कैंडिडेट्स के लिए कोई मैसेज, कोई फीडबैक? उनके लिए बस यही मैसेज है कि वट एवर यू हैव बुक्स प्रिपेयर विद दैट, read, go through the NCERT firstly, don't move for this book, that book, it will make your work very hectic. So just focus on NCERT books and whatever you have studied, revise it. Do not go to yes, solve previous year question, that is important. Otherwise you will do is if this kind of questions are going to be asked in the next coming examination also, the level will be the same, right? And qualify. थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे टीचर बनोगे एंड यू विल ब्रिंग गुड चेंज इन बिहार। Thank you sir. आपका कौन सा 2 तारीख वाला था या फिर री एग्ज़ाम वाला? नहीं, मेरा जो है वो 2 तारीख वाला था। 2 तारीख वाला। कैसा पेपर रहा? पेपर बहुत ईजी था। सब्जेक्ट कौन सा था आपका? साइंस। साइंस था। साइंस से कैसे क्वेश्चंस रहे हैं? क्वेश्चंस जो है वो इजी थे, कुछ क्वेश्चंस जो है मॉडरेट लेवल पे थे, अच्छा, जिस पे कुछ डाउट था। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी ही थे। ठीक है। चाइल्ड स्टडी पे क्या था? चाइल्ड स्टडी वाला थोड़ा सा सोचने वाला था, ओके, बाकी ऐसे जो सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन था इजी था। ठीक है। और जो सवाल जीएस मैथ्स वगैरह से थे वो वाले? हाँ, वो सब जो है वो आराम से सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन था। आराम से सॉल्व हो जाने वाले। आज लास्ट डे का पेपर है ना? हाँ। ओके। अपकमिंग बीपीएससी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका 2 तारीख वाला था या फिर री एग्ज़ाम? 2 तारीख वाला था जी। लगता है मतलब आज सबका 2 तारीख वाला ही सेंटर में पड़ा है। आज जी 2 ही तारीख वाले लोगों का। जैसे आज री एग्ज़ाम वाला भी हो रहा था, हमको लगा री एग्ज़ाम वाला तो नहीं। जी, जैसे एक पेपर जो कैंसिल हुई थी वो वाला भी एग्ज़ाम आज ही पड़ा है। और इसको पता नहीं है, लेकिन 2 तारीख को जो फॉर्म भराया था उसी का है ये। आपका कौन सा पेपर था? 1 था। पेपर 1 था। किस सब्जेक्ट के लिए? साइंस का था। साइंस के लिए। जी। साइंस में कैसे क्वेश्चंस रहे? बहुत अच्छे क्वेश्चन सब आए हैं। मतलब आसान। जी। ठीक है सर। आप हमें ये बता दीजिए कि जो साइंस से जो सवाल आए हैं बेसिकली किस टॉपिक से रहे हैं? और सभी टॉपिक से थे, जो सब्जेक्ट है उसी से है, अदर से कहीं से अलग से नहीं पूछा है। जी। सीडीपी वगैरह जी, ये सब था। वो सब भी था, उस भी बेसिकली सब सारे टॉपिक से जो आ रहे थे वही हाँ, थे। वो सब था। जो सीडीपी से सवाल थे वो फैक्चुअल बेस्ड थे या फिर थोड़ा एनालिटिकल था? और फैक्चुअल बेस्ड था। फैक्चुअल बेस्ड। जी। और जो मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह सवाल था कुछ दिक्कत हुई या फिर बन गया? वो बहुत ईजी था। मैथ और रीजनिंग बहुत ईजी था। बहुत easy। जी। और उसका सवाल भी तो कम है। मैथ और रीजनिंग का सवाल भी बहुत कम होते हैं। जी। एक्यूरेसी के साथ कितना बना है 150 में से? 120। जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। कौन सा पेपर था? साइंस साइंस का था। साइंस वाला। री एग्ज़ाम वाला पेपर था या फिर ओपन वाला? क्या? एक री एग्ज़ाम वाला पेपर था या फिर साइड हो जाएगी थोड़ा सा? री एग्ज़ाम वाला पेपर था या फिर ओपन वाला? ये री एग्ज़ाम वाला था जो पेपर कैंसिल हुई थी। नहीं, कैंसिल नहीं, जो आखिर था 2 तारीख को 2 तारीख को फॉर्म भराया फॉर्म भरा था वो वाला। री एग्ज़ाम वाला पेपर था ना? जी नहीं, ये ओवर एज वालों के लिए था। अच्छा, ओवर एज वालों को। जी, री एग्ज़ाम एक पेपर जो कैंसिल हुआ वो भी हो पेपर गया था, वो भी था, ये नया वाला दोनों था, एक ही साथ था। एक ही साथ हुआ। कुछ पेपर कैसा लगा आपको? पेपर मॉडरेट था, नॉर्मल था, लगभग औसत था, जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। कुछ चेंजेस दिखी क्योंकि री एग्ज़ाम वाला ही पेपर था और चेंज नहीं था, जो था वो जेन्युइन था। सीडीपी वगैरह कैसा रहा? वो एकदम सिलेबस के हिसाब से था। बस हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थे एक लाइन के। अच्छा, किस में? सीडीपी में? सीडीपी जो 30 क्वेश्चन थी। ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर था, उससे कैसे क्वेश्चंस रहे? मैथमेटिक्स नहीं, हमारा साइंस था, उसमें केवल साइंस आया था। साइंस था केवल आपका? साइंस से क्या सवाल रहे? साइंस से क्या सवाल रहे? साइंस के वस्तुनिष्ठ टाइप के सवाल थे। मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। ईमानदारी से बताइए कितने सवाल बना पाए, मतलब जो ऐसा लगा कि ये सवाल आसान है बन जा रहे हैं? लगभग उसमें 70 सवाल। 70 सवाल मतलब इजी वन? लगभग 110 के आसपास गया होगा। 110 के आसपास। और जो जनरल वाला क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड कुछ जीएस वगैरह भी सवाल थे, उसमें तो 20 नंबर का ही आता है। 20 नंबर का। उसमें से कितना सही वाला लगा? लगभग 19 के आसपास होगा, 18-19 नॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा नहीं था। बिहार स्टेट का आज लास्ट पेपर है? लास्ट पेपर है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये वाला जी। मैथमेटिक्स का हाँ, मैथमेटिक्स कोई चेंजेस लगे उस पेपर में और इस पेपर में? नहीं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ज़्यादा चेंज नहीं था। ओके, हो गया। आपका था कैंसल्ड वाला था या फिर ओवर? रीओपन वाला था। रीओपन वाला था। ओके। आपका कौन सा पेपर है, कैंसल्ड वाला था या फिर रीओपन वाला? कैंसल्ड वाला था। हाँ? क्या? कैंसिल हुई थी एक पेपर वो वाला था? नहीं,
मेरा अभी जो हुआ है कैंसिल रीओपन रीओपन था। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? बोटनी ऑनर्स था, साइंस था। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द वेरियस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट एंड इस एफर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।